Hello students, welcome to the official page of Sankhyan Educational Institute. I am Karthik Pandey and I am going to tackle all your problems in physics from here. This is the first lecture of class 11th and I am going to start from vectors. This is an introductory lecture where we will come to know or we will get familiar with certain terms in vectors. So let's start with the introduction of vectors. Before going into the introduction of vectors, I would like you to explain certain terms and quantities called physical quantities. So let's start with the lecture. Okay. As you know that physics is the study of nature and certain laws governing the phenomena in nature. So for the better understanding of these laws, we need to measure certain quantities called physical quantities. What are physical quantities? The quantities which can be measured are called physical quantities. What are physical quantities? Quantities जिनको हम measure कर सकते हैं उन्हें हम physical quantities कहते हैं. तो physical quantities are those quantities which can be measured. Example of physical quantities: length, mass, time, distance, displacement, force, velocity, etc. There are many more physical quantities which we'll study in further chapters. धीरे धीरे हम बेटा बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे और जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नए फिजिकल क्वांटिटीज से आप इंट्रोड्यूस होते चले जाएंगे. तो फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम लोग फर्दर डिवाइड किए हैं दो क्वांटिटीज में, जिनको हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: scalar physical quantities, scalar physical quantities and vector physical quantities. क्या है scalar physical quantities? Scalar physical quantities are those quantities which are completely described by their magnitude, which are completely described by their magnitude. तो क्या है scalar physical quantities? These are those quantities which are completely described by their magnitude. What do you mean by magnitude? Magnitude is numerical value plus unit. The numerical value will always be associated with a unit because you know that any measurement without any unit is meaningless. इसका मतलब है जो भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो कि एक प्योर नंबर होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और इस नंबर के साथ एक यूनिट होगी जो स्पेसिफाई करेगी कि ये किस टाइप की क्वांटिटी को मेजर किया गया है. तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को हम कंप्लीट डिस्क्राइब कर सकते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से. तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है हम देख लेते हैं एक बार उनके एग्जांपल्स को. तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा. आप लोग न्यूज में जनरली सुनते होंगे कि द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे वाज सेट अबाउट 43 डिग्री सेंटीग्रेड और समथिंग. तो 43 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मतलब बेटा ये जो 43 है दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू
and this degree centigrade is our unit. तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर को स्पेसिफाई करने के लिए केवल हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू और डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। इसके अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर हम केवल मेंशन कर दें 43 डिग्री सेंटीग्रेड तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये टेम्परेचर के बारे में बात हो रहा है। अगर आप दुकान जाते हैं, कहीं भी शॉप पे कुछ सामान खरीदते हैं, तो वो आपको वे करके देता है फॉर 10 kgs ऑफ एनीथिंग विच यू बाय। So this 10 is again the numerical value and this kg is the unit. So scalar physical quantities are those quantities which are completely described by a numerical value and a unit. These quantities follow ordinary laws of addition, multiplication and division. So these quantities follow ordinary law of addition, subtraction, multiplication and डिवीजन। इनको हम नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से ऑपरेट करते हैं। इसके लिए हमें कोई स्पेशल टाइप की मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी क्वांटिटीज जो होती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज होती है। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को, जिसे हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं, दे आर दोज क्वांटिटीज दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होती ही होती है, प्लस उसके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होता है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा दे फॉलो सर्टेन लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। they do not follow or ordinary arithmetic। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम ऑपरेट करते हैं या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पे करते हैं, तो उनके लिए एक सर्टेन लॉज है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। वी डू नॉट ऑपरेट देम अंडर सिंपल अरिथमेटिक। तो क्या है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। They have direction and also they follow laws of vector algebra। laws of vector algebra, they do not follow ordinary arithmetic। So what are these quantities? The examples of vector physical quantities are displacement, velocity, force, acceleration, momentum, etc. These are vector physical quantities। अब देखिए for example what is displacement? We know that displacement is the shortest distance between any 2 points or 2 points. Suppose you can go A to B through this path, you can go A to B through this path, but for the shortest distance or the shortest path between A, B will be a straight line, and to reach from A to B through this shortest path you have to follow a certain direction।
You cannot reach A to B by following any random direction. So displacement is a vector quantity which has magnitude as well as direction. So this is a vector quantities. For example, velocity. We say 10 meter per second towards east, which means that any object which is moving with this magnitude 10 meter per second, this magnitude 10 meter per second is not moving in any random direction, but it is going towards east. So this is the direction associated with this magnitude. So velocity is a scale, vector physical quantities which has magnitude as well as direction. Force, for example, if we apply a force of 15 Newton, you have to specify the direction in which direction you are applying this force. So 50 Newton towards positive x-axis. So this 50 Newton is the magnitude, and this towards positive x direction is the direction. So वेक्टर क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटीज हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिनके लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है. These vector physical quantities, they do not follow simple arithmetic. They are added by a separate law called triangle law of vector addition. तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं vectors are not added by simple arithmetic. Their addition follow a law called triangle law of vector addition. इनका मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है. हम लोग आगे देखेंगे कि वेक्टर्स के दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट जिनको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. तो यहां से बेटा हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटीज को अगर हमें वेक्टर क्वांटिटीज कहना है तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तभी होगा जब उनके पास ये तीन चीजें होंगी. कौन कौन? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, और अगर ये दोनों हैं भी तो भी इसके साथ एक तीसरी चीज एसोसिएट होनी चाहिए और वो है कि इट शुड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा. इट शुड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, दैट इज वेक्टर एडिशन. तो एक एग्जांपल है इसके साथ, इलेक्ट्रिक करंट. अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल. तो अगर हम कहते हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट दैट इज लेट अस एग्जांपल 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ सर्किट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसका थोड़ा ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो क्या ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, दिस इज नॉट अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज. तो दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? बिकॉज
it do not follow vector addition. ये सिंपल लॉ से ऑपरेट होता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि एज्यूम करो कि ये जंक्शन है, it is junction of any circuit and here current 2 एम्पियर आ रहा है, यहां से करंट 3 एम्पियर, तो टोटल कितना एम्पियर करंट जाएगा? 5 एम्पियर. कैसे? 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर. तो आप देख सकते हैं इनको हमने सिंपल या ऑर्डिनरी अरिथमेटिक से ऑपरेट किया है. तो ये सिंपल एडिशन फॉलो करता है, ये वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है. तो याद रखिएगा, दिस करंट इज अ स्केलर quantity. This is not a vector quantity. Why? Because it do not follow triangle law of vector addition. उसी तरह एक और एग्जांपल है प्रेशर का. प्रेशर में हम जानते हैं बेटा, प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस. प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो अगर कोई एक सरफेस है और अगर वो किसी फ्लूइड में इमर्ज्ड है, तो उस सरफेस पे जो प्रेशर किसी पॉइंट पे लगेगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा. तो हम कह सकते हैं प्रेशर के पास कुछ मैग्नीट्यूड भी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. तो प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. Why? Because it do not follow vector algebra. इसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है, चेंज नहीं होता है, और ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. तो प्रेशर इज ऑल्सो नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. चलिए अब आता है नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. तो हम समझ गए बेटा वेक्टर क्वांटिटीज है क्या, क्यों जरूरत पड़ी इन क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए. एज्यूम करिए कि रास्ते में कहीं एक व्हीकल है. आपने बहुत सारे जोक सुने होंगे. तो एक व्हीकल है और इस व्हीकल को ठीक है, इस व्हीकल को दो आदमी बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, या कह सकते हैं इनकी कैपेसिटी सेम है, और ये इसको पुश कर रहे हैं. सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से ये दोनों इसको पुश कर रहे हैं. ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है. दोनों की जो फोर्स है वो सेम है. तो क्या ये व्हीकल मूव करेगा? नहीं. क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि ये बड़ा कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं कि दो आदमी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो ये व्हीकल मूव नहीं करेगा. अब देखिए, अगर हम कहें इसी में कि अगर इसी व्हीकल को अब यही दो लोग सेम डायरेक्शन में पुश करें, अब ये भी फोर्स F लगा रहा है और ये भी फोर्स F लगा रहा है, तो अब आप देखें कि व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा. ये आप खुद देखे होंगे, या तो स्कूल बस जब आपकी खराब हो गई होगी तो आप लोग उतर करके धक्का देते हैं, या रास्ते में आप देखें कभी भी रोड पे जब गाड़ियां खराब हो जाती है तो बहुत सारे लोग उसको पीछे से धक्का दे रहे होते हैं. तो देखिए, अगर उन आदमी के पास ये कॉमन सेंस है कि अगर इक्वल अमाउंट ऑफ people will start pushing from opposite direction, then the vehicle will not move. But agar if the same amount of people are pushing from a single direction, then the vehicle will move.
तो इसका मतलब बेटा कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, अगर उनका हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो हमारा जो एंड रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसी ही क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। इसीलिए बेटा हमने क्या किया, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज नेचर में है इनको दो क्वांटिटीज में डिवाइड कर दिया, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिन पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनका डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है along with मैग्नीट्यूड। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स पे। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो बड़ा वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि वेक्टर्स को हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर्स को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो याद रखिएगा, वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से। Length of this line will give the magnitude of the length of this line will give the magnitude of the vector quantity। तो एक लाइन है, इसकी जो लेंथ है वो हमें क्या देगी? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में क्वांटिटी होगा हम उस डायरेक्शन में एक एरो लगा देते हैं। दिस एरो विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इसका मतलब बेटा कि एक वेक्टर क्वांटिटी को हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट विल गिव इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरो विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको रिप्रेजेंट करने से पहले बेटा हम कुछ स्केल सेट कर लेते हैं। स्केल सेट करने का मतलब है कि सपोज किसी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन टूवर्ड्स वेस्ट, ये फोर्स लग रहा है। तो बेटा हम यहाँ स्केल सेट कर लिए कि लेट अस अज्यूम दैट कि ए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। इसका मतलब है कि 5 सेंटीमीटर विल करस्पॉन्ड टू 50 न्यूटन। तो अगर बेटा हमें फोर्स 50 न्यूटन को दिखाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। दिस 5 सेंटीमीटर विल शो और रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर? टुवर्ड्स वेस्ट, तो हम इसको वेस्ट साइड में एक एरो दिखा देंगे जो कि इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। तो बेटा इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को, जिसमें हम एरो वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसमें डायरेक्शन को एक एरो से शो करते हैं, इसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट और लेटर्स। तो स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन, स्क्रिप्ट और लेटर रिप्रेजेंटेशन। स्क्रिप्ट और लेटर रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं बेटा, जब भी हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर से रिप्रेजेंट करना होता है, फॉर एग्जांपल फोर्स है, तो हम फोर्स की सिंबल F लिख करके इसके ऊपर एरो लगा देते हैं और इसे पढ़ते हैं वेक्टर F, रेड एज वेक्टर F। तो कोई भी क्वांटिटी है, अगर A है, इसके ऊपर एरो लगा दिए तो इसे हम पढ़ेंगे वेक्टर A। तो जब भी किसी लेटर के ऊपर हम एक एरो लगा देंगे तो वो वेक्टर सिंबल बन जाएगा।
वो वेक्टर सिंबल बन जाएगा। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर है, magnitude of this vector is represented as f vector का mod read as mod of वेक्टर f, या फिर अगर इसको ऐसे कर दें वेक्टर a का मॉड, तो इसे हम पढ़ेंगे मॉड ऑफ वेक्टर a। मॉड का मतलब बेटा मैग्नीट्यूड ओनली द लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर। और ये मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि किसी भी लाइन की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है वो कैन नॉट बी नेगेटिव, because magnitude is represented by length of the line segment, length of the line segment, and this length can never be negative. So the magnitude of any vector will always carry a positive number. तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड एफ मॉड ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं। इन बुक्स बेटा किसी किसी बुक्स में आप देखिएगा वेक्टर्स को बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करता है। तो इन बुक्स vectors are represented by bold letters। ठीक है, बोल्ड लेटर्स। जैसे एग्जांपल कि अगर हमें वेक्टर ए को शो करना है, तो इस वेक्टर ए को अगर हम बुक में शो करते हैं इन बुक्स, तो इसे हम बोल्ड लेटर ए से शो करेंगे। अगर इस वेक्टर एफ को हमें बुक्स में रिप्रेजेंट करना है, तो इसे हम बोल्ड लेटर एफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं बेटा कि टाइपिंग में किसी भी लेटर के ऊपर एरो लगाने में टाइम ज्यादा लगता है और केवल बोल्ड करने में टाइम कम लगता है। इसलिए जब भी कोई बुक टाइप होती है तो वेक्टर्स को बोल्ड लेटर्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आता है एक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, इसे कहते हैं इनवेरिएंसी ऑफ वेक्टर्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बेटा, इनवेरिएंसी मतलब इनवेरिएंट, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है वेक्टर के पास जो कि चेंज नहीं हो रही है। अब हमें देखना है कि वो किस कंडीशन में चेंज नहीं हो रही है, क्या है वो इनवेरिएंसी, और क्या है वेक्टर के पास ऐसा कुछ जो कि इनवेरिएंट है। तो हम क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर इज ऑलवेज इनवेरिएंट, विच मीन्स अ वेक्टर इज invariant, which means that we can shift the vector anywhere without changing its direction। इसका मतलब है कि हम वेक्टर को अगर कहीं भी शिफ्ट कर दें, स्पेस में कहीं भी लेकर के चले जाएं, और अगर उसका लेंथ और उसकी डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम वेक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इनवेरिएंसी वेक्टर क्या है, वेक्टर इज इनवेरिएंट which means we can shift, which means we can shift the vector anywhere in space without changing its डायरेक्शन। या फिर हम कहते हैं कि ये वेक्टर इज इनवेरिएंट, मतलब वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इन ट्रांसलेशन। वेक्टर
remains unchanged in ट्रांसलेशन। एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, और इसकी लेंथ है सपोज एल, सर्टेन डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो अगर इस वेक्टर को यहां ना बना करके हम कहीं भी बना दें, और अभी भी इसकी लेंथ एल है और ये सेम डायरेक्शन के अलोंग डायरेक्टेड है, तो इसका मतलब कि ये दोनों वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, ये अभी भी वेक्टर ए ही होगा। या इस वेक्टर को हम यहां बना दें, कहीं भी बना दें, अगर इसकी लेंथ को हम चेंज नहीं कर रहे हैं और इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम वेक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो एक वेक्टर को बेटा स्पेस में हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर is called invariancy of vectors.